الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ کی توفیق اللہ کی عنایت سے ایک بار پھر ہم اپنی اس کلاس میں شامل ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے آسان قرآن. اللہ کی توفیق سے ہم سورہ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں جس میں ہم نے رکوعات کی جو تقسیم رکھی تھی ہمیں بتایا تھا کہ ابتدائی جو 4 رکوعات ہیں وہ تمہیدی نوعیت کے ہیں، مکی دور کا خلاصہ ہے. الحمدللہ ہم اس کو اچھی طرح مطالعہ کر چکے. اس کے بعد 10 رکوعات جو تھے بنی اسرائیل کے حوالے سے تھے، ان کے جو معاملات تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا ہے اس قرآن کریم میں، گویا کہ ان کی چارج شیٹ کو پیش کیا گیا اور وجہ بتائی گئی کہ کس وجہ سے، چونکہ وہ سابقہ امت مسلمہ تھے، ان کو اس منصب سے اتارا گیا اور اگلی امت یعنی کہ صحابہ کرام بنی اسماعیل کو اس منصب پہ فائز کیا. تو ہم جن رکوعات کا مطالعہ کر رہے ہیں در حقیقت وہ چارج شیٹ بیان ہو رہی ہے، اس کا مطالعہ کریں جو کہ اپنے اختتام کو ہے. اور مجموعی طور پر ہم 12ویں رکوع کا مطالعہ مکمل کریں گے آج انشاءاللہ. ابتدائی حصہ اس رکوع کا ہم مطالعہ کر چکے. اگلے جو 3 آیات ہیں اس رکوع کے بقایا، آیت نمبر 101 تا 103 سورہ البقرہ کے، آج ہم ان کا مطالعہ کریں گے. سلسلہ کلام جاری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو کسی طرح بھی ماننے کو تیار نہیں تھے. وجہ ضد تھی، بہت سارے معاملات تھے جو وہ کرتے آ رہے تھے. ایون کہ جبریل امین کے ساتھ ان کا یہ معاملہ تھا کہ جو قرآن کا نزول ان کے ذریعے ہو رہا تھا اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، اس کے بھی انکاری تھے، بلکہ اس کو برا بھلا کہتے تھے. تو پچھلے آیات میں ہم نے ان کا مطالعہ کیا اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کتاب ان کے سامنے آ گئی، اس کو اپنے پسے پش ڈال دیتے، مطلب اس کو ایسے اگنور کرتے کہ جانتے ہی نہیں ہے. آج بھی بات وہیں سے آگے بڑھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارا طریقہ کار وہی ہے، لفظ بہ لفظ ترجمہ ہوگا، کچھ الفاظ ہوں گے ان کی تشریح ہوگی، اور جہاں ان آیات کو ہم پڑھ رہے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا خلاصہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واہ، اور جیسا کہ ہم نے ابتدا میں بتایا تھا یہ جو واہ ہے اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. عام طور پر اور سے ہم ترجمہ کرتے ہیں، حالانکہ چونکہ چنانچہ البتہ، حالانکہ اس طرح کے بہت سارے الفاظ سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے. اردو محاوروں میں عام طور پر اس کا ترجمہ اور سے ہم کرتے ہیں. واہ اور لما، لما کے معنی بھی جب ہوتے ہیں لیکن اس سے مراد ہوتا ہے جب کبھی. اس طرح ترجمہ کرتے ہیں جب کبھی. ولما اور جب کبھی. جاءہم دو الفاظ ہے، جا آیا، ہم انہیں یا ان کے پاس یا ان کی طرف. جاءہم آیا ان کی طرف. رسول یا رسول سے مراد ہے کوئی رسول. من عند اللہ، من مانے سے، عندہ مانے پاس یا کی طرف، اللہ اللہ، یعنی کہ اللہ کی طرف سے کوئی رسول ان کے پاس آیا. جب کبھی آیا. مصدقن، اب یہ مصدقن میم کا ترجمہ میں اکثر کہتا ہوں والا سے ہم کرتے ہیں، آسان کر کے بتا رہا ہوں گرامر کی ان اصطلاحات سے بچتے ہوئے. میم کا ترجمہ آپ والا سے کر دیں گے تو جملہ اردو میں بالکل صحیح ہوگا. یہ دال کے نیچے جو زیر ہے وہ کرنے کا مفہوم بتا رہا ہوتا ہے. اگر یہاں زبر ہوتا جس پر کام ہوا، یعنی کہ تصدیق جس کی ہوئی، یا مصدقن تصدیق کرنے والا. وہ رسول کون ہے جو تصدیق کرنے والا ہے. لی ماں، لی کے معنی ہوتے ہیں کے لیے عام طور پر، لیکن میں نے کہا تھا، میں بتا چکا ہوں کہ یہ جو جتنے بھی حروف ہیں جب ہم اردو محاوروں میں ان کو استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ اردو ترجمے میں لاتے ہیں، تو ہم اپنے محاوروں کے استعمال ہونے والے حروف استعمال کرتے ہیں تاکہ بات آسان فہم ہو جائے. عربی میں اپنی جگہ بالکل یہ ٹھیک ہے، لی ہی آنا چاہیے، لیکن یہاں لی کا ترجمہ کی سے کیا گیا، یعنی کہ اس کی. ماں کے معنی جو. معہم دو الفاظ ہیں، مع کے معنی ہوتے ہیں پاس یا ساتھ، ہم ان کے پاس ہے یا ان کے ساتھ ہے. نبذ فریقن، نبذ پچھلی مرتبہ بھی ہم نے پڑھا کسی چیز کو حقیر سمجھ کے چھوڑ دینا، پیچھے پسے پش ڈال دینا. نبذ ڈال دیا یا چھوڑ دیا، فریقن ایک گروہ نے.
یہ دیکھیں، دو پیش، دو زبر، دو زیر اس طرح آتے ہیں. اس کا معنی ہوتا ہے کچھ، ایک، کوئی، اس طرح کے ترجمے پیدا کر رہا ہوتا ہے. نبذ فریقن، ایک گروہ نے کیا کیا؟ ڈال دیا، پیچھے ڈال دیا. من الذین، اب یہ کون تھے؟ ان میں سے جو، الذین وہ جو، اوتو، اوتو ترجمہ کیا گیا دیے گئے، الکتاب، کتاب، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، کتاب سے مراد وہ شریعت دی گئی تھی ان کو، وہ قوانین دیے گئے تھے. اور کتاب سے مراد وہ کتاب الہی بھی ہے. یعنی کہ اب یہاں پہ ایک لفظ ہے اوتو، اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں، اس کی شکل یہ ہے، اوتو. اچھا، ایک لفظ آتا ہے آتا. آتا کا معنی ہوتا ہے اس نے دیا، اگر جمع میں ہو تو آتو، ان سب نے دیا. اچھا، یوتی، اب یہ آتا ماضی میں تھا، یوتی حال اور مستقبل دونوں میں ترجمہ ہوتا ہے. وہ دیتا ہے، وہ دے گا. اب دیکھیں، اس میں اس نے یا ان سب نے یا وہ کا الفاظ شامل ہوتا ہے. یہ لفظ نہیں ہوتے، یہ پورے جملے ہوتے ہیں در حقیقت، کہ اس میں فائل یعنی کہ کرنے والا فعل کے ساتھ شامل ہوتا ہے. لیکن جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا ایکٹیو وائس، کرنے والا بھی ظاہر ہوتا ہے. لیکن جب یہ اس شکل میں آ جائے، او تو، وہ سب دیے گئے، اب ترجمے میں کیا فرق آیا؟ اس میں کرنے والا غائب ہو گیا، جس پہ کام ہوا، جس کو دیا گیا، ان کا ذکر آ گیا. اب فاعل نہیں ہے، ڈائریکٹ مفعول کا ذکر آ گیا. تو اوتو کا مطلب ہوتا ہے وہ سب دیے گئے، اور جبکہ آتو تھا ان سب نے دیا. اوتو وہ سب دیے گئے، یعنی ان سب کو دیا گیا. کتاب، الکتاب، کتاب دیا گیا. اچھا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. ورا، اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. ورا کے معنی ہوتے ہیں پیچھے. یہ ظرف کہلاتے ہیں، ظرف مکان بھی ہوتے ہیں، ظرف زمان بھی ہوتے ہیں. ظرف ان کے پیچھے، ورا پیچھے. ظہور، ظہور، ظہر کی جمع ہے. ظہور کہتے ہیں، ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو، بیک کو. اس کی بھی ہم تفصیل پڑھ کے آئے ہیں. ظہورہم، پیٹوں کے، ان کے پیچھے. ورا ظہور، پیٹوں کے پیچھے. ہم اپنی یا ان کی. کأنہم، اچھا کا ترجمہ ہوتا ہے کہ، کا انا کے ساتھ آ جائے. اچھا، کہ سوری، کا ترجمہ ہوتا ہے مانند، کی طرح، جیسے، اس طرح ترجمہ ہوتا ہے. انا کے ساتھ آ جائے گویا. اردو میں دونوں کو ملا کے مطلب ایک مختصر لفظ بنا دیا گیا، گویا. کأنا، گویا. ہم وہ سب، لا نہیں، یا لمونا اس شکل میں آیا، وہ سب نہیں جانتے، وہ سب نہیں جانتے. کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ سب نہیں جانتے. کیا بتایا گیا اس آیت میں؟ کہ جب کبھی کوئی رسول اللہ کی طرف سے ان کے پاس آتا تھا، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی، جو ان کے پاس ہے، ان کی کتاب، اس کتاب میں اس کے بارے میں پہلے سے پیش گوئیاں موجود ہیں کہ یہ رسول آئے گا، یہ کتاب ہوگی، اور یہ ساری تفصیلات ان کو پتہ ہے. پچھلے آیتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں. وہ ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اتنی واضح نشانیاں تھی. اب ان کے پاس جو ہے وہ اس کی تصدیق کر رہا ہے، وہ کتاب کہہ رہا ہے کہ یہ وہی رسول ہے. لیکن کیا کرتے تھے؟ پسے پوچھ ڈالتے تھے. پھر ظاہر ہے، آ، اللہ کی کتاب کو پسے پوچھ ڈالا، کچھ سوالات بھی ہوتے تھے معاشرے میں. جو لوگ جن کو یہ کہا کرتے تھے کہ وہ آئے گا، یعنی کہ وہ نبی آئے گا، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ نبی آئے گا تو ہم کامیاب ہوں گے. تو لوگ سوال پوچھتے تھے کہ یہ وہی ہے؟ تو جواب میں کیا آتا تھا؟ نہیں معلوم، مطلب اگنور، انجان بننا، وہ ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں ہے، اس طرح کا جواب دیتے تھے. پھر ایک اہم ترین چیز ہے جس کو سمجھنا ہے ہمیں اپنے معاشرے کو دیکھتے ہوئے، آج کے مسلمانوں کو دیکھتے ہوئے. یہ وہ کام ہے جو کہ اس دور کے مسلمان یعنی کہ بنی اسرائیل میں تھا، اور آج بھی یہ موجود ہے، اور دین کے نام پر یہ رائج ہے. وہ ایک اور کام کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی کیا، باقی معاملات کو بھی اس طرح ہی کیا کرتے تھے. ان کا طریقہ کار تھا، اور منسوب کرتے تھے کس سے؟ سلیمان علیہ السلام سے. اس کو ہم پڑھتے ہیں آیت کو، ساتھ ساتھ تشریح بھی ہوتی جائے گی. وَاتَّبَعُوا، اتباع کرنا، پیروی کرنا. وا کے معنی اور، واو الف جمع کی علامت ہے. تو ان سب نے پیروی کی. ماں، جو، تتلو پڑھتے تھے. تلاوت کا لفظ ہم کہتے ہیں نا، پڑھتے، فالو کرنا بھی معنی ہوتا ہے اس کا. پڑھتے تھے، فالو کرتے تھے. الشیاطین، شیطان کی. ان سب نے پیروی کی اور پڑھتے تھے وہ جو شیطان ان کو سکھاتا تھا. اعلیٰ ملک سلیمان، اعلیٰ کے معنی ہوتے ہیں پر، ملک سلیمان یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر. یعنی یہ کون تھے؟ وہ شیاطین جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوتے تھے، وہ یہ کام کیا کرتے تھے.
वमा कफरा, और नहीं कुफर किया सुलेमान, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, वलाकिन, वा माने और, लाकिन उर्दू में भी हम कहते हैं लेकिन, अशयातीन कफरू, शैतान, सब शैतानों ने कुफर किया। अब वो क्या था? वो युअल्लिमूना, वो सिखाते थे, युअल्लिमूना, वो सब सिखाते थे, अन्नासा, लोगों को, यानी कि लोगों को सिखाते थे, असहर, जादू। अब इस शहर को, लफ्ज को भी समझ लेते हैं, फिर इंशाल्लाह इसकी वजाहत करता हूँ। आमतौर पर जो शहर के लफ्जी माने हैं ना, सा सीन हा रा, इसके माने होते हैं किसी की मतलब जो मोड़ना, किसी चीज को मोड़ना या फेरना या बदलना, इस तरह के माने आते हैं। इसके असल माना किसी चीज को असल हकीकत से गैर हकीकत की तरफ फेर देना, जिसका माखज लतीफ और दकीक हो, यानी कि बहुत सॉफ्ट तरीके से ये तब्दीली आती है, यानी आहिस्तगी से, गैर महसूस तरीके से ये किसी चीज को फेर देना। इसी यहीं से ये लफ्ज निकला है, धोखा देने के। फिर जो चीज इस शहर में मुब्तला कर दे, इसे हम जादू कहते हैं, इसलिए हम उर्दू में आसान तर्जुमा इसका करते हैं जादू। और एक और जगह भी हम शहर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जब सुबह का वक्त होता है। वो क्या होता है? अब ये जो था ना, फेरना, किसी चीज का पलटना, लौटना, रात जब आहिस्ता आहिस्ता दिन में तब्दील होती है, तो उस लम्हे को सहर कहा जाता है, यानी कि सुबह का वक्त। तो इस चीज को भी सहर कहते हैं। तो जादू सीखते, वमा उन, और जो नाजिल किया गया, अला मलकाइनी, अला के माने पर, मलकाइन दो फरिश्ते, बाबिल, बाबिल एक शहर था, इराक का एक साबका नाम ये भी बताया जाता है। आज भी बेबीलियो उनका एक शहर का नाम बताते हैं, इराक का ही इलाका है। हारूत व मारूत, हारूत व मारूत दो फरिश्तों के नाम बताए। अब हुआ क्या था, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जो शयातीन थे वो ये काम किया करते थे, जादूगरी ये वगैरह। तो उस दौर का फितना जो था, वो ये जादूगरी था। तो बनी इसराइल, चूंकि बनी इसराइल उसी सिलसिले का हिस्सा है, तो ये मंसूब करते थे कि ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में भी ये काम होता था, गोया कि दीन में ये चीज जायज है। वो ये करते थे, और दर हकीकत अल्लाह ने इसको वाज़ेह किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफर नहीं किया था, ये वो शयातीन थे, ये किया करते थे। और उनको, मतलब उस माशरे के लोगों को आजमाइश में डालने के लिए अल्लाह की तरफ से दो फरिश्ते उतारे गए थे, जिनको ये इल्म दिया गया था कि जाके ये काम करो। और वो क्या करते थे? अच्छा, आज भी हम नक्शे सुलेमानी के नाम से इस चीज को अच्छी तरह जानते हैं। जादू करना, सहर करना, और तावीज गंडे, ये चीजें, अमलियात जो हम करते हैं आमतौर पर, बड़े बड़े बोर्ड, तख्तियां लगी होती हैं, लोग, वॉल चॉकिंग हो रही है, बड़े मजे से इस्लामी शहर मुल्कों में ये चीज आम बताई जाती है, इस्लाम से मंसूब करके। ये एक बहुत बड़ा फितना है। इसमें बताया ये जा रहा होता है कि हम दीन के साथ इसको वाबस्तगी दे रहे होते हैं। दर हकीकत ये दीन नहीं है, ये उन शयातीन की जो है ना, शैतानियां थी, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नहीं किया, ये दीन का कोई हिस्सा नहीं था। और वो जो फरिश्ते भेजे गए थे, दर हकीकत वो आजमाइश के लिए भेजे गए थे, जो जादू सिखाते थे। अब वो आगे बताएंगे क्या सिखाते थे। आज भी हम इस पे कारबंद हैं। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे इन अमलियात से। वमा, अच्छा, वो फरिश्ते क्या करते थे? वमा, और नहीं, युअल्लिमाने, वो दोनों सिखाते थे। इस लफ्ज को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, दो दो का अल्फाज बार बार आ रहा है। युअल्लिमाने, ऐन लाम मीम, जो हम जानते हैं इल्म इसी से बना है। अच्छा, अगर ये फ़अला युफ़अलु की शक्ल में आ जाए, इस शक्ल में आ जाए, होने से करने का मफहूम एतमाम के साथ, तो अल्लमा सिखाता है, सिखाया, युअल्लिमु सिखाता है, यानी कि वो उसने सिखाया, वो सिखाता है। अगर हम इसको यूं देखें, युअल्लिमु वो सिखाता है, युअल्लिमानी वो दोनों सिखाते हैं, युअल्लिमूना वो सब सिखाते हैं। इसके पूरी वो गर्दान होती है, मैं मुख्तसर ये अल्फाज आप लोगों को बता रहा हूँ जो मकसूद है हमें। युअल्लिमूना, अब हमारे पास क्या है? युअल्लिमानी वो दोनों सिखाते हैं, और नहीं वो दोनों सिखाते, मिन अहदिन किसी एक को, यानी कि किसी फर्द को, हत्ता यहाँ तक के, हत्ता उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ तक के, यकूला
अच्छा, यकूल हम जानते हैं वो कहता है, लेकिन यकूला का लफ्ज आया है, इसको भी समझ लेते हैं हम। यकूला, काफ वाव लम, जैसे हम काला को जानते हैं, उसने कहा, यकूलू वो कहता है, यकूलू वो कहता है, यकूलाने वो दोनों कहते हैं। अब वो उसी तरह जैसे कि युअल्लिमाने है, वो दोनों सिखाते हैं, वो दोनों कहते हैं। लेकिन शर्तिया तौर पर जब कोई हर्फ शर्त आ जाए, हत्ता जो कि है, हत्ता आ गया तो नून जो है गायब हो जाएगा, और तर्जुमे में एक तब्दीली हम देखेंगे। हत्ता यकूला, यहाँ तक के वो दोनों कह देते थे, इनके बता देते। क्या? इन्नमा। इन्नमा का अगर सही तर्जुमा किया जाता है मुख्तसर, तो कहा जाए सिर्फ। वरना इसका तर्जुमा ये भी है, नहीं सिवाय इसके। चूंकि इसमें जोर है तो बेशक से भी तर्जुमा ये करते हैं। लेकिन ये बात याद रहे, इन्नमा के अंदर सिर्फ का मफहूम पाया जाता है, यानी कि नहीं है इसके सिवा। नहनो, यानी कि नहीं है हम इसके सिवा। नहनो के माने हम, फितना, आजमाइश। ये लफ्ज फितना बहुत अहम लफ्ज है, कुरान करीम ने इससे बहुत इस्तेमाल है। इंशाल्लाह किसी और मौके पर इसको हम समझेंगे, बहुत डेप्थ में समझने के वाला लफ्ज है ये। फितना आजमाइश है। फला, हालांकि हम उर्दू में नेगेटिव सेंस में कहते हैं, कुरान करीम ने इसको आजमाइश के मानों में लिया है। फला, फा के माने तो या पस, ला नहीं, तकफुर, अब उस शख्स को कहा जा रहा है जो सीखने आया। फला तकफुर, तो तुम मत कुफर कर, यानी कि तू मत कुफर कर, मत ये सीख। लेकिन वो फिर भी जिद करते थे, चूंकि वो आजमाइश के लिए आते थे, इत्माम हुज्जत हो गया, बता भी दिया कि मत सीखो, फिर भी वो कहते थे, चूंकि उनको इस मकसद के लिए भेजा था, वो सिखा देते। अब ये जो फरिश्ते थे, वो किस शक्ल में आते थे? अब हमें ये भी पता है कि जब कौम लूत पे जब अजाब आया था, तो इंसानी ये यंग नौजवान की शक्ल में फरिश्ते आए थे, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले आके मुलाकात करते हैं, फिर उस कौम पर अजाब बनकर टूटते हैं इंसानी शक्ल में। ऐसे ही हदीस जिब्रील, मशहूर हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में आए थे। वो एक पूरी तफसील है कि आखिर में वो जब जाते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये जिब्रील थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। यानी कि इंसानी रूप में फरिश्तों का आना बहुत सारे मकामात पे हमें मिलता है। तो वो फरिश्ते आए, उन्होंने सिखा दे। फ़ा यतम यतअल्लमूना, फा के माने फिर, या के माने वो, ताल्लम हम पढ़ चुके, सिखाना सीखना, वाव नून जमा के लिए। पर फिर वो जब सीख लेते, फिर भी वो सीख लेते, मिन होमा, होमा दोनों के लिए, फरिश्तों के लिए, मिन से, उन दोनों से, माँ जो, युफर्रिकूना, फर्क कहते हैं अलग करना, जुदा करना। इसी से फरकान जो लफ्ज कुरान का है, हक को बातिल को अलहदा करना, अलग करना, वाजे करना। युफर्रिकूना मुजारे का सीगा, या के माने वो, फर्रिक उसी तरह का लफ्ज है जो हम पढ़ रहे हैं, फ़अला, यानी कि युफ़अलु, जुदाई डालते, वाव नून जमा के लिए सब, बिही इसके जरिए से या इससे। बैना, बैन के माने होते हैं दरमियान। अल मर, मरई कहते हैं मर्द को, यानी कि आदमी को। वह जौजी ही, वाह के माने और, जौज के असल जो माने हैं जोड़ा, किस्म, यानी कि मर्द की दूसरी किस्म क्या है? औरत, यानी कि उसकी बीवी। तो यहाँ सिंपल तर्जुमा किया गया बीवी। ही के माने उसकी, व जौजी ही, और उसकी बीवी के। वो क्या था? सबसे बड़ा जो है ना इंसानी माशरे में, जो सबसे बड़ी खराबी थी उस दौर में मौजूद थी, कि लोग जो है ये फितना, मतलब ये जो जादू सीखते थे, किस लिए सीखते थे? कि वो मर्द और औरत के दरमियान इख्तलाफ पैदा करें, गोया कि उसकी बीवी को हासिल करने के लिए ये तरीका किया करते थे, शॉर्टकट्स। आज भी हम ये शॉर्टकट्स तलाश करते हैं दीन में। दीन बिल्कुल वाज़ेह है, सब कुछ हमारे सामने है, हमें सब कुछ बता दिया गया है। उसमें मुश्किलात भी हैं, उसमें इनाम भी हैं, उसके मामलात हैं, आजमाइश भी हैं। लेकिन हम मुसलमान क्या ढूंढते हैं? शॉर्टकट्स। यही वजह है वो अमलियात हम सीखते हैं। तो वो उनके माशरे में जो सबसे बड़ी बुराई थी उस वक्त, उसको हाईलाइट किया गया, कि वो क्या सीखते थे? गोया कि ये जो आए थे फरिश्ते, वो जादूगरों की मार्केट में जाके बैठते थे और वो बताते थे कि अहम तरीन जादू मर्द और औरत में जुदाई। आज भी हम कहते हैं ना, महबूब आपके कदमों पे और फलाना और ढिमकाना, इस तरह की बातों में, कि ये अमलियात सीख लो तो ये हो जाएगा। तो मियाँ और बीवी के दरमियान जुदाई पैदा करने का अमल सीखते थे।
वमा, हालांकि नहीं। अब देखिए वा का तर्जुमा हालांकि से हुआ, माँ नहीं। माँ की बहुत सारी अकसाम है, इंशाल्लाह इसको आइंदा आइंदा समझेंगे। इस यहाँ तर्जुमा है नहीं। हम, वो सब, बेज़ारिन, नुकसान पहुंचाने वाले। जरर कहते हैं नुकसान को, ज़ारिन, नुकसान पहुंचाने वाले, जमा में है, सब। बिही, इससे, मिन अहदिन, किसी एक को। ऐसा नहीं है कि इससे किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इल्ला बिइज़निल्लाह, इल्ला के माने मगर, बिइज़निल्लाह, बी के माने से, इज़्न हुक्म या इजाजत, अल्लाह ही, अल्लाह के, यानी कि अल्लाह की इजाजत या हुक्म के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है कोई किसी को नुकसान पहुंचा दे। अब ये जो लफ्ज आता है ना बेइज़निल्लाह, अल्लाह ताला ने कवानीन बना लिए हैं। जो फिजिक्स के जो लॉज हैं वो कवानीन हैं, अल्लाह ताला ने बना दिया। ऐसा नहीं है कि किसी इंसान ने बनाया हो या चीजों में खुद ब खुद ये चीजें हो रही हैं। ये कवानीन बन चुके हैं। जो इस पे अमल करेगा वो नतीजा वही निकलेगा। यानी कि जो नतीजा निकलता है वो दर हकीकत अल्लाह की इजाजत से ही निकल रहा होता है। अल्लाह चाहे तो उसको रोक दे। वाह, और यतअल्लमूना, या के माने वो, ताल्लम, एहतमाम के साथ किसी चीज को सीखना। अब ये थोड़ा सा फर्क आ गया, ताल्लम, वाउनून, सब, वो सब सीख लेते, यानी कि सीखते हैं। माँ, जो, युजुर्रुहुम, या के माने वो, जरर, नुकसान, हुम, उन्हें, और जो नुकसान देता है, वला यनफऊहुम, ऐसा नहीं है, यनफऊहुम, या वो, नफा, फायदा, या नफा, हुम, उन्हें, ऐसा नहीं है कि वो उससे फायदा उठाते हैं, बल्कि वो हकीकत में नुकसान है। वो नुकसान क्या है वो आगे बयान हो रहा है। वलकद, और, लकद, लकद का लफ्ज भी जोर के लिए आता है। ला के माने होते हैं यकीनन, या अलबत्ता से भी तर्जुमा करते हैं। कद के माने तहकीक शुदा बात, ऐसी बात जो मुख्तलिफ ना हो, बिल्कुल वही हो। लकद, यकीनन, तहकीक, अलिमू, उन सब ने जान लिया, यानी कि वो अच्छी तरह जान गए। लमन, अलबत्ता जो, इश्तरऊ, इश्तरा, खरीदना बेचना दोनों मानों में आता है, सौदा किया उसे। मा लहू, माँ नहीं है, लहू उनके लिए, फिल आखिरत, आखिरत में, मिन खलाक, मिन माने से, खलाक, खलाक, इसका रूट वर्ड बड़ा अहम है, इसको हम समझ लेते हैं आज। अच्छा, खलकुन के माने होते हैं, इसके जो बुनियादी माने होते हैं, किसी चीज को बनाने या काटने के लिए इसे मापना, उसका अंदाजा करना, यानी कि तनासब व तवाजुन को देखना उसके, या किसी चीज को किसी दूसरी चीज के मुताबिक बनाना, यानी कि किसी चीज को नरम हमवार करना, तैयार करना। नेज, एक चीज जो दूसरी चीज से बनाना। हमने आ, बारी के मुतालिक जब पढ़ा था तो वहाँ पे खल्क, बारी और मुसव्विर को हमने तीनों को समझा था। ये तीन स्टेजेस हैं जो अल्लाह ताला की तख्लीक के हैं, तब जाके तख्लीक पूरी मुकम्मल होती है। तो खल्कुन उनमें से है कि किसी चीज से किसी को बनाना। कुरान करीम में बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे कि खलकल इंसाना मिन नुतफत, यानी कि इंसान को जो बनाया है अल्लाह ताला ने नुतफे से बनाया, यानी कि किसी चीज से किसी चीज को बनाना। और इसी तरह खलाक, जो ये लफ्ज आया है, खलाकुन के माने होते हैं अंदाजा, जैसे इन्हें अंदाजा लगाना, अंदाजे के मुताबिक मुकर्रर किया हुआ हिस्सा, जिसका ये तर्जुमा होता है। अब वो क्या था आखिरत में, असल में ये जो सौदा था इन्होंने किया, क्या किया, आखिरत में अपना हिस्सा छोड़ दिया और दुनियावी जिंदगी को अपना फायदे के तौर पे इस्तेमाल कर लिया। यहाँ ये बताया जा रहा है, ये जानते हुए भी उन्होंने ये सौदा कर लिया और आखिरत को गंवा दिया। वला बेसा, वा माने और, ला के माने यकीनन, बेसा बुरा है, ये लफ्ज भी हम पढ़ चुके हैं। वला बेसा, अलबत्ता बुरा है, मा शरो, जो सब उन्होंने बेच डाला, सौदा किया, बिही, इसके बदले में, अनफुसहुम, अपनी जानों को, उनकी अपनी जानें भी दे दी हैं। मतलब इससे मुराद क्या होता है कि अल्लाह ताला की जो अमानत है जान, इसका आखिरत में नतीजा जहन्नम या जन्नत, यकीनन नेक अमल करने वाले जन्नत में जाएंगे। तो ये सौदा करके अपने आप को जहन्नम की आग का ईंधन बना दिया। लव कानू या लमून, काश वो सब जानते होते। अल्लाह ताला यहाँ पर भी एक हसरत का इजहार करते हुए बताते हैं, काश के वो ये जानते होते कि ये बहुत बुरा सौदा है। वलो, और अगर, अच्छा लव के माने काश भी होते हैं, अगर भी होते हैं, इंशाल्लाह तफसील से हम पढ़ते हैं। वलो, और अगर, अन्नहुम, के बेशक वो, आमनु, ईमान ले आते।
वत्तकू, और परहेजगार बन जाते, तकवा कर लेते, अपने आप को बचा लेते। वाह के माने और इत्तकू जमा के सीगे में है परहेजगार बनना या अपने आप को बचाना। ला ला मसौबतुन, ला मसौबतुन, मसौबा, ये इस लफ्ज को भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। साबा यसूबु सौबन, चले जाने के बाद फिर वापस आ जाना, ये इसका लफ्जी तर्जुमा है। अच्छा, इसीलिए मसाबत लिन्नास हम कुरान की आयत में पढ़ते हैं ना। मसाबा उस जगह को कहते हैं जहां लौटा जाए, यानी कि ठिकाना, जो चीज, जो नतीजा है ना। इंसान आया कहाँ से? अल्लाह ताला ने उसकी तख्लीक की है, बताया है कि तुम्हें आखिरत में मेरे पास आना है, और उसके बाद तुम्हारा जो है नतीजा तुम्हारे सामने रखा जाएगा। तो वो जगह जहां लौटा जाए उसको मसावत कहा गया। अच्छा, इसी लिहाज से कपड़े को भी सौब कहते हैं अरबी में। चूंकि सा और ता का जो है ना बहुत करीब आजकल के अरब लहजे में है, तो थोप का जो लफ्ज है बड़ा मशहूर है। थोप उस कपड़े को कहते हैं जो बुना हुआ होता है। बुनाई की वजह से थोप को कपड़ा कहते हैं। अब ये बुनाई क्या चीज़ है? अगर आप कपड़े को गौर से थोड़ा सा जूम करके देखें तो आपको लगेगा कि उसके धागे जो है ना एक दूसरे के ऊपर जा रहे हैं और लौट रहे हैं, जा रहे हैं और लौट रहे हैं। उस बुनाई की वजह से कपड़े को सौब कहा जाता है। बहरहाल, इस लफ्ज के डेप्थ को बताने के लिए ये लफ्ज बता रहा हूँ। असल में यह तर्जुमा है। यहाँ पे सवाब जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना उर्दू में, हमें ये नहीं पता सवाब के माने क्या है। दरअसल सवाब वो चीज़ है जो अल्लाह की तरफ से हमें मिलनी है, वो नतीजा है जहां पर हमें लौट कर जाना है। मिन इंदल्लाहि, मिन माने से, इंदा पास या तरफ के माने में भी आता है, अल्लाह ही, अल्लाह की तरफ, यानी कि वो जो नतीजा है, वो जो सवाब है, मिन इंदल्लाहि, अल्लाह की तरफ है, खैरुन, बेहतर है। अगर वो ईमान ले आते और अल्लाह के कहने के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते बच बच कर, तो उनके लिए बेहतरीन लौटने की जगह थी अल्लाह के पास, जो खैर थी। लव कानू या लमून, आप देखिए लव की तकरार, काश वो सब जानते होते। यही बात ऊपर आया, लव कानू या लमून, काश कि वो जानते होते। आज तो हम जानते हैं ना, चले बनी इसराइल ने ये गलती कर ली, आज तो हम जानते हैं। क्या हम उस उम्मत की तरह अपने आप को इस अजाब में डाल दें? उनके सामने सब कुछ क्लियर था, आज हमारे सामने कुरान की शक्ल में सब कुछ क्लियर है। तो ये सबक है आज की मुस्लिम उम्मत मुस्लिमा के लिए, कि वो अपने आप को पहचाने कि वो अल्लाह के नेक बंदों में हैं या नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, लफ्ज़ व लफ्ज़ तर्जुमा यहाँ पर हो चुका। काफ़ी डेप्थ है इन आयात में, लेकिन जो बुनियादी चीज़ थी वो मैंने रखी है। इंशाअल्लाह अजीज़, जब आप खुद से मुताला करेंगे तो बहुत कुछ आपके सामने इन आयात में आएगा। तो बनी इसराइल की एक और नफ्सियात, एक और हरकत जिस पे अल्लाह ताला ने उनको माजूल किया, उसका जिक्र भी आ जाया। मान के नहीं दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। पता नहीं बहुत सारे हीले बहाने भी बनाए, बहुत सारे अ, हरकतें और की, यहाँ तक कि वो जादू टोने वाले भी मामलात उन्होंने किए। अल्लाह के उस हुक्म को नहीं माना जो उनकी तरफ आया होता। अब रवां तर्जुमा इन आयात का हम कर लेते हैं। और अब भी ये यही हुआ है कि अब ये पिछली बात का तसलसल है कि जिब्रील अमीन के साथ जो मामलात किए और उसके इनकार किया, और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अब भी यही हुआ है। जब अल्लाह की तरफ से एक पैगंबर उन पेशगोइयों के मुताबिक इनके पास आ गया है जो इनके यहाँ मौजूद है, वो तो ये लोग जिन्हें किताब दी गई, इनमें से एक ग्रोह ने अल्लाह की इस किताब को इस तरह पीठ के पीछे फेंक दिया गोया कि वो उसे जानते ही नहीं, और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरर पहुंचाने के लिए उस चीज के पीछे लग गए जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाही के नाम पर शयातीन पढ़ते पढ़ाते हैं। ये उसे सुलेमान की तरफ मंसूब करते हैं, हालांकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी कुफर नहीं किया, बल्कि इसी तरह के शयातीनों ने कुफर किया। वो लोग लोगों को जादू सिखाते थे और उस चीज के पीछे लग गए जो बाबल में दो फरिश्तों, यानी कि हारूत और मारूत पर उतारी गई थी। हालांकि वो दोनों उस वक्त तक किसी को कुछ ना सिखाते थे जब तक उसे ना बता देते थे कि हम तो सिर्फ एक आजमाइश है, इसलिए तुम इस कुफर में ना पड़ो। फिर भी ये उनसे वो इल्म सीखते थे जिससे मियाँ और बीवी के दरमियान जुदाई डाल दें। और हकीकत यह है कि अल्लाह की इजाजत के बगैर ये उससे किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। ये इस बात से वाकिफ थे, अच्छी तरह वाकिफ थे, और इसके बावजूद वो चीजें सीखते थे जो इन्हें कोई नफा नहीं देती थी।
بلکہ نقصان پہنچاتی تھی، حالانکہ یہ جانتے تھے کہ جو ان چیزوں کا خریدار ہے اس کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیا ہی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ دی۔ اے کاش یہ جانتے، اگر یہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں جو صلہ انہیں ملتا ہے وہ ان کے لیے کہیں بہتر تھا۔ اے کاش یہ سمجھتے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے کہہ رہے ہیں، امید کر رہے ہیں، توقع کر رہے ہیں کہ کاش کہ میرے بندے سمجھ جائیں۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ، یہاں ہمارے سبق کا اختتام ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آخر میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ انذار جو ڈاکٹر ریان احمد یوسفی صاحب کی یوٹیوب چینل ہے، وہاں پر ایک ڈاکومنٹری پیش ہو رہی ہے۔ قرآن کریم میں بہت سارے سوالات ہمارے ذہن میں اٹھتے ہیں، میں خود یہ محسوس کرتا ہوں جتنے بھی سوالات ہیں ان کے کلیئر جواب ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ قرآن کے ان سوالات کے جوابات تلاش کریں تو یہ سیریز ضرور دیکھیں، ڈاکومنٹری جو ڈاکٹر ریان احمد یوسفی صاحب کی تحریر ہے، اور اس کو ایک ڈاکومنٹری کی شکل دی ہے۔ بہت خوبصورت اور بہت بہترین ویڈیوز اور بہت جی مختلف جگہوں پہ بنائی گئی ویڈیوز ہیں، ان کو ضرور دیکھیے گا۔ جزاکم اللہ جی خیر۔